Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS we have completed 11 chapters and today we are starting our 12th chapter and this chapter is named as Contaminated Water Spreads Diseases. So today we are starting a new chapter with its part 1 that is Introduction. तो बच्चों हमने हमारे कक्षा 5 के EVS में अब तक कुल 11 अध्याय पढ़ लिए हैं और आज हम एक नया अध्याय यानी कि 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है कंटामिनेटेड वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस। तो इस अध्याय का आज हम परिचय शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ हम पहले एक स्टोरी से पढ़ना शुरू करेंगे। हरिमोहन was a shepherd and used to graze his sheep in his village. So you can see Harimohan was a shepherd and he used to graze his sheep in the village. तो जो हरिमोहन था ये एक गडरिया था और ये क्या करता था, अपनी भेड़ें चराया करता था। कहाँ पर? अपने गांव में चराया करता था। He would take his sheep to a pond to make them drink water. जो हरिमोहन था वो अपनी भेड़ों को कहाँ ले जाता था? पॉन्ड पर यानी कि तालाब पर। क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। तो भेड़ों को जब प्यास लगती थी तो हरिमोहन भेड़ों को तालाब पर लेकर जाता था। He himself took water from the same pond for his drinking. So that was the case that he also took the water from the same pond for drinking. और हरिमोहन ने खुद ने भी उसी तालाब से अपने पीने के लिए पानी लिया था। The villagers also used the water of that pond for cooking their food, for taking a bath, as drinking water for animals, etc. So here you can see the pictures where you can find that these ladies are washing their clothes and these animals like these buffaloes are drinking water from some pond. तो ये जो गांव के लोग थे, जिस गांव में वो तालाब था, उस गांव के लोग उसी तालाब से खाना बनाने के लिए पानी लेते थे, उसी तालाब से नहाने के लिए पानी लेते थे और उसी तालाब पर वो जो एनिमल्स थे, उनके जो पशु थे, उनको पानी पिलाया करते थे। राधे, a person from the same village, would take his buffaloes to that pond to make them drink water and to give them bath. So here you can see Radhe, who was just like doing this thing. He took his animals, he took his buffaloes to that pond and he was just let them drink water from that pond and also he was giving them a bath from that पॉन्ड। तो राधे जो कि उसी गांव का एक व्यक्ति था, वो अपने एनिमल्स को, खासकर जो इसकी भैंसें थी, इसकी बफेलोस थी, उनको लेकर जाता था उस तालाब पर, वहाँ से पानी भी पिलाता था और वहीं तालाब में उनको नहलाता भी था। During the summer season, the water of the pond would dry up and convert into mud. So here you can see that thing कि गर्मी में क्या होता था, ये जो तालाब था इसका पानी बहुत सूख जाता था और फिर ये क्या हो जाता था, पानी सूख जाता था गर्मी के कारण और ये तालाब एक प्रकार के जो कीचड़ का गड्ढा है उसमें परिवर्तित हो जाता था। Then even from that little leftover water in the pond, the villagers would consume water as per their requirement. The villagers remained ill most of the time. So these villagers used to take water for their according to their requirement from that pond only. And this was the case that these villagers remained ill for most of the टाइम। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि एक ही तालाब में से ये जो गांव के लोग थे ये खाना बनाने के लिए पानी भी लेते थे, उसी तालाब से ये पीने के लिए भी पानी लेते थे, उसी तालाब में ये पशुओं को नहलाते थे, उसी तालाब में खुद नहाया धोया करते थे और उसी तालाब से ये पशुओं को पानी पिलाया करते थे और इस कारण से ये सारे गांव के लोग अधिकतर बीमार रहा करते थे।
Now you have to think about some questions and try to answer these questions. So first of all, you try to think and answer what is the difference between the river water and the water accumulated in a pit. So this is the first thing you have to think and try to answer. तो बच्चों आपको सोचना है कि जो नदी का पानी होता है और किसी गड्ढे का पानी जो एक जगह इकट्ठा होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। आपने देखा है कभी ना कभी रिवर वाटर एंड सम वाटर अक्यूमुलेटेड इन अ पिट, यानी एक नदी का पानी और एक कोई गड्ढे में रुका हुआ पानी, इन दोनों में क्या कोई अंतर होता है। सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी स्टैग्नेंट वाटर इन योर नियर बाय एरिया। तो बच्चों आप अपने आसपास क्या कहीं पर गंदा पानी रुका हुआ देखते हैं या गंदा सड़ा हुआ पानी देखते हैं? क्या आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ गंदा सड़ा हुआ पानी दिखाई देता है? सो जस्ट ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आफ्टर दैट देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड व्हाट इज दैट? Why is there a foul smell from the water accumulated in a pit? So if you have seen the water accumulated in a pit, you will find that it is having a foul smell. तो जो आप किसी रुके हुए गड्ढे में पानी, किसी गड्ढे में रुका हुआ पानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, एक दुर्गंध आती है। तो ये दुर्गंध वास्तव में क्यों आती है, इसके पीछे कारण क्या है, ये भी आपको सोचना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज नो फाउल स्मेल इन द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स। तो जो नदी का पानी होता है या झरनों का पानी होता है उनमें से ऐसी कोई गंदी दुर्गंध नहीं आती है। सो फर्स्ट थिंग यू केम टू नो दैट द रिवर वाटर इज फ्लोइंग वाटर। नदी का पानी हमेशा लगातार बहता रहता है, लेकिन गड्ढों में जो पानी होता है वो एक जगह रुका हुआ रहता है। तो अब जो गड्ढों का पानी है उसमें से आपको स्मेल आती है, गंदी सी दुर्गंध आती है, लेकिन जो नदी का पानी है उसमें से ऐसी स्मेल नहीं आती। सो व्हाट इज द रीजन? ट्राई टू फाइंड इट आउट, ट्राई टू टॉक टू योर एल्डर्स एंड पेरेंट्स। नाउ Harimohan's sister Alka saw a pit with stagnant water behind her school. तो हरिमोहन की जो बहन थी अलका, हरिमोहन वॉज द शेफर्ड वी टॉक्ड अबाउट। हमने हरिमोहन की बात की जो गडरिया था, जो अपनी भेड़ों को चराता था। तो हरिमोहन की बहन थी, उसका नाम क्या था? अलका था। एंड अलका सॉ पिट विद स्टेगनेंट वाटर बिहाइंड हर स्कूल। अलका ने अपने स्कूल यानी अपने विद्यालय के पीछे एक गड्ढे में सड़ा हुआ पानी देखा। When she looked inside the pit carefully, she saw insects in it. जब उसने उस गड्ढे के पानी को ध्यान से देखा, गौर से देखा, तो उसको क्या मिला कि उस पानी में, उस सड़े हुए पानी में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, बहुत सारे इंसेक्ट्स थे, और ये चीज़ अलका ने अपनी आँखों से देखी। Now, she also saw many mosquitoes sitting on that dirty water. So, अलका ने और क्या देखा? अलका ने देखा कि बहुत सारे मच्छर भी उस गंदे सड़े हुए पानी पर बैठे हुए थे। When she touched the plants near the pit, many mosquitoes flew from there. So here you can see many mosquitoes on the water. तो अलका ने जब क्या किया, उसने उसके गड्ढे के आसपास के जो पौधे थे उनको छुआ, उनको टच किया, तो क्या हुआ? बहुत सारे मच्छर वहाँ से भागे, बहुत सारे मच्छर वहाँ से निकल के उड़ने लगे। Now, outside Alka's house, there is a very beautiful garden, but they cannot play there in the evening because the mosquitoes dribble a lot by biting. तो अलका का जो घर है बच्चों, उसके बाहर एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा है, गार्डन है, लेकिन उस बगीचे में ये बच्चे यानी अलका और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो खेलने नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? बिकॉज द
mosquitoes trouble them a lot, क्योंकि वहाँ बगीचे में बहुत सारे मच्छर होते हैं और वो मच्छर उनको काटते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. Now, in stagnant water, many small organisms or insects are there and mosquitoes are seen sitting on the surface of water. तो आपको पता चला कि जो ठहरा हुआ, जो रुका हुआ गंदा पानी होता है, उस ठहरे हुए, उस रुके हुए गंदे पानी में हमको बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलते हैं और ये जो कीड़े होते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ जहाँ पानी रुका होता है. और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे मस्किटोज भी होते हैं, यानी कई सारे मच्छर भी उस पानी की सतह पर बैठे होते हैं. Now they lay their eggs in that water. अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो मॉस्किटोज होते हैं ये अपने अंडे उसी पानी में देते हैं. Now larva or baby mosquito comes out of these eggs. Later the larva converts into an adult mosquito. तो क्या होता है, जो अंडे पानी में दिए जाते हैं उन अंडों से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं जिनको कि हम बेबी मस्किटो कह सकते हैं. और फिर उन लार्वा से धीरे धीरे बड़े मॉस्किटो यानी बड़े मच्छर बनने लगते हैं और इस प्रकार उस रुके हुए पानी में ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर पनपने लगते हैं. Now, Radhe's brother Mohit plays in the garden daily in the evening. So, Radhe's brother Mohit, here you can see Mohit, so he plays in the garden daily in the evening. तो जो मोहित था वो रोज उस बगीचे में शाम को खेला करता था. Now many mosquitoes are there. वहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे. Now yesterday night he felt very cold and then suffered with high fever. क्या हुआ कि ये जो राधे का भाई था मोहित, जो कि उस गार्डन में, उस बगीचे में खेला करता था, उसको पिछली रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और जब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी तब धीरे धीरे उसको तेज बुखार चढ़ने लगा. Now, once he vomited, then there was excessive sweating and his body temperature decreased. तो हुआ क्या कि राधे का जो भाई था, हमने जिसकी पिक्चर अभी देखी मोहित, इस मोहित के साथ क्या हुआ कि एक बार इसको उल्टी हो गई, ठीक है, और उल्टी होने के बाद उसको बहुत सारा पसीना आने लगा, बहुत सारा पसीना आने लगा और उसके बाद उसकी बॉडी का टेम्परेचर, उसका शरीर का तापमान बिल्कुल कम हो गया. Now his father took him to the hospital where he got his blood tested. अब जो उसके पापा थे, किसके पापा, मोहित के पापा, उसको अस्पताल लेके गए और उसकी खून की जांच करवाई. Doctor said Mohit is suffering from malaria disease. अब उसको देख के, उसके खून की जांच को देख के डॉक्टर ने बताया कि मोहित जो है इसे मलेरिया नाम की बीमारी हो गई है. Now you have to think and answer two more questions here. What are those questions? Let's see. First one is, why did Mohit suffer from malaria? तो मोहित को मलेरिया क्यों हो गया बच्चों? मोहित ऐसा क्या कर रहा था कि उसे मलेरिया हो गया? Then the second question is, what are the symptoms of malaria? तो मलेरिया के सिम्टम या मलेरिया के चिन्ह क्या होते हैं? So you just try to find out the answers of these questions by discussing with your parents, elders and your friends, or I'll answer these questions in our next part. So students, this was all for today. Thank you for watching.